Good evening and welcome all. Today we are reading chapter 10. RERA. It's very important chapter. Anjali madam, over to you. You can start reading in English. Yes, thank you, HR sir. So today we are starting chapter 10, which has some very important miscellaneous topics. We are doing the reading of Know Your Balance Sheet, authored by C.A. Hanumantrao Chaudhary, and we start chapter 10. So we start with the topic RERA. RERA stands for Real Estate Regulatory Authority. RERA is an act which facilitates transparency in home buying procedure. It was brought into action to eradicate the existing discrepancies and problems within the sector, that is housing sector. RERA rules are applicable to both residential and commercial property. So what is the impact of RERA? Impact of RERA on home buyers. Builders have to disclose each and every detail of the project that they have undertaken on RERA's official website. Further, they have to keep updating this information on a regular basis. This assures buyers of transparency regarding project timelines. Next, builders cannot charge you for the super built-up area that includes lifts, balconies, stairs, and lobbies. And 70% of the total proceeds collected from home buyers shall be put into a separate bank account, which they can only use for construction purposes. In case of any delay in completion of project, developer has to pay you interest of 2% over SBI's MCLR for the period of delay. Up to 5 years from handover of the building flat, etc., you can report construction defects and demand the developer to rectify them. Disputes with buyers are to be solved within 120 days of it being filed. The developer or builder cannot make alterations or additions to the building plans without informing 2/3 of the owners about such a change. It can only proceed if a majority of home buyers agree. Next page. Builder or developers cannot take more than 10% as advance from home buyers. If at the time of possession you discover a discrepancy in your title deed, you can immediately ask for compensation from the developer. Next topic is money laundering. Money laundering involves taking criminal proceeds and disguising their illegal source in anticipation of ultimately using the criminal proceeds to perform legal and illegal activities. Simply put, money laundering is the process of making dirty money look clean. Dirty money can be obtained from drug trafficking or terrorist activity, corruption, fraud, and originated from a legitimate source. The money from the illicit activity is considered dirty, and the process launders the money to make it look clean. Following are the steps involved in money laundering. First is placement. At this stage, the dirty money is deposited into a legitimate financial institution. This is often in the form of cash bank deposit. This is the riskiest stage of the laundering process because large amounts of cash are pretty conspicuous and banks are required to report high value transactions. Next is layering. Layering involves sending the money through various financial transactions, that is transferring from one bank account to another bank account and from one bank to another bank to change its form and make it difficult to follow. This is the most complex step in any laundering scheme, and it's all about making the original dirty money as hard to trace as possible. Next is integration. At this stage, the money appears to come from a legal transaction. This may involve a final bank transfer into the account of a local business in which the launderer has a stake. Some of the ways or techniques of money laundering. Purchasing assets. The purchase of assets with cash, where the primary purpose is to transfer the illegal profits from bulk cash
to an equally valuable but less conspicuous form. Lending funds. Using a justifiable cash-focused business to make dirty funds with the legitimate income. Exchanging currency. Buying foreign money with illegal funds, foreign currency exchanges. Gambling. Buying casino chips, cashing out the chips, and taking check payment or claiming the proceeds as gambling winnings. Next is Benami transaction. So what is Benami transaction? This is a transaction in which the real beneficiary is not the one in whose name the property has been purchased. This would also include the consideration received from such property. Benami property would also include the right or such other document evidencing title or interest in such property. Instances of Benami transaction. Every state has a certain limit on the amount of agricultural land that an individual or his family can hold. Thus, where such a limit is reached, people try to purchase the property in the name of another person, but provide the consideration for the said property. A person who has access to price-sensitive information of a company as a result of being in a position of power within the company would not be allowed to trade in the shares of the company, since it would amount to insider trading. Therefore, to find a way out of this, they involve a third unrelated party and give him the funds to trade on their behalf. Next page. During demonetization, there were many instances of persons depositing old notes into their bank accounts which belonged to another person and then exchanging them for new notes. The definition of property under the Benami Act is very wide and also includes cash. Hence, such a transaction would also be termed as a Benami transaction. A nice quote on this: a successful businessman has a basic understanding of the legal system that governs his or her business. There are multiple legal angles to a business, and one must understand them all to do business peacefully as well as successfully. So, what are the punishments under the Benami Act? The various forms of punishment under the Benami Act are as follows. Confiscation of Benami property. Where a Benami transaction has been entered into to defeat the provisions of any law, avoid payment of statutory dues, or avoid payment to creditors, any person who enters or abets or induces another person to enter into such a transaction would be punishable with 1. Imprisonment between 1 to 7 years, and 2. Fine up to 25% of the fair market value of the property, and 3. Where a person who is required to provide information under this act provides false information, he shall be punishable with imprisonment between 6 months to 5 years and fine up to 10% of the fair market value of the property. So these are the punishments. With this, we come to end of the chapter 10. Over to you, HR sir. Thank you very much. Thank you and good evening all. Today we are going to read very important chapters. One and all businessmen should understand these laws. बहुत सारे लोग रेरा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। ये सब चीजें जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको सक्सेसफुल बिजनेस करना है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। रेरा एक्ट तो सबको जानना है, जो फ्लैट लेना चाहते हैं, कोई सैलरी होल्डर हो या बिजनेसमैन हो, जिसको भी फ्लैट्स लेना है तो रेरा एक्ट के बारे में उनको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को हम लोग चेक किया कि रेरा के बारे में पता ही नहीं है, रेरा एक्ट में कितना अपने को एज ए कस्टमर अपने लिए कितना राइट्स है, हम क्या क्या एक्शन बिल्डर के ऊपर ले सकते हैं, ये बहुत सारे रेरा में लिखा हुआ है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कशंस कर रहे हैं, आप सब लोग ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। फर्स्ट चैप्टर रेरा। रेरा मीन्स रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी।
इज एन एक्ट, रेरा इज द एक्ट। ये जो होम बायर है उनके लिए बहुत सारे फैसिलिटी दिया हुआ है इसमें से। जो भी प्रीवियस जो फ्लैट होल्डर जो बिल्डर से परचेज करता था वो बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स फेस करता था। जैसे रेरा एक्ट आ गया वो बहुत सारे उनको राइट्स दिया हुआ है। जो भी प्रीवियस का डिस्क्रिपेंसी था, प्रॉब्लम्स था, ये सब चीजें रेरा एक्ट में खत्म हो गया। रेरा जो एक्ट है वो रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अभी इम्पैक्ट क्या हुआ, अभी जैसे रेरा एक्ट आ गया तो इससे होम बायर्स के लिए क्या इम्पैक्ट हम लोग आप देखेंगे। Builder have to disclose each and every details of the project that they have undertaken on RERA official website. जैसे आप फ्लैट बुक करने के लिए जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चेक करना है बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन है क्या नहीं। रेरा रजिस्ट्रेशन में है तो रेरा ऑफिशियल उनका वेबसाइट में जाके आपको ये चेक करना है बिल्डर आपको पोजीशंस कब देने वाले, उनका स्टेप्स क्या क्या होने वाले, मींस कभी आपका 10%, 20%, 30%, 100% कौन सा ईयर तक ये कंप्लीट होगा और आपका पोजीशंस कब मिलेगा, ये सब उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्क्लोजर करना बहुत मैंडेटरी हो गया। पहले कैसे आपको बिल्डर ने लिख के देता था मेरे को पोजीशन आपको 22 में दे देंगे, बट 22 में नहीं दिया तो क्या करना है, उधर कौन सा भी एक्ट नहीं था। उसके लिए रेरा एक्ट स्पेशली कस्टमर होम बायर के लिए आया हुआ है। सपोज उस टाइम पे आपको पोजीशन नहीं मिला तो क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हैं वो भी इसमें रेरा एक्ट में डिटेल्स में लिखा हुआ है। फर्दर दे हैव टू अपडेट इंफॉर्मेशंस रेगुलर बेसिस। इतना ही नहीं है, उन्होंने एक बार स्कीम के बारे में डिस्क्लोज किया, बाद में पूरा स्कीम होने तक कुछ अपडेट नहीं किया, ऐसा नहीं है। दे हैव टू अपडेट एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयरली उनको अपडेट करना बहुत जरूरी है। उनका जो भी स्कीम का प्रोसेस है, मींस प्रोग्रेस क्या है, वो सब रेरा का साइट में अपडेट करना बहुत जरूरी है। पहले कैसे बिल्डर्स आपको विदाउट इंफॉर्मेशन, जैसे आपने परचेज किया उस टाइम पे कुछ प्लान अलग होता था, उसके बाद में कुछ अलग होता था, वो भी अभी वो चीजें अभी नहीं होगा। बिल्डर कैन नॉट चार्ज यू फॉर बिल्टअप एरिया इंक्लूडिंग लिफ्ट, बालकनी, स्टेयरकेस एंड लॉबीज। एज पर रेरा एक्ट के हिसाब से बिल्डर आपको सेपरेट चार्ज ये नहीं कर सकते। अभी उन्होंने जो भी चार्ज करना है वो सब पैकेज में आपको इंक्लूडिंग चार्ज करने के लिए चालू हो गया, बट पहले कैसे सब आपको सेपरेट चार्जेस करता था। जैसे रेरा एक्ट में क्या बोला है कि जैसे आपका 70% जो प्रोसीड्स है, जो आप कस्टमर के से जो पैसे लेता है, उसके लिए एक्स्ट्रा अकाउंट में आपको सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। पहले कैसे जो भी कस्टमर से पैसे आया वो स्कीम का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होता था। सपोज किधर जगह अपना लैंड कम रेट पे मिल रहा है तो बिल्डर ने क्या करता था, वो लैंड बाई करता था, तो ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी था वो स्टॉप हो जाता था। मींस बिल्डर को इन टाइम पे पोजीशन नहीं मिलता था फ्लैट का। जैसे रेरा एक्ट ने क्या कंडीशंस किया, आपका जो भी कस्टमर से आपने पैसे लिया 70% आप सेपरेट अकाउंट में ओपन रखना है, उसका विड्रॉल करके उसका जो पर्पज है यूटिलाइजेशन ओनली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, उसके लिए आपको सीए का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेके आपका जो विड्रॉल करना है वो पर्पज ओनली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो भी घर पोजीशन है वो इन टाइम पे आपको मिलेगा। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द रेरा एक्ट। सपोज आपको पोजीशन इन टाइम पे नहीं मिला तो आप उनको 2% मींस आपका सपोज एसबीआई एमसीएलआर 10% है, आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बिल्डर से आप ले सकते हैं। सपोज आपको इन टाइम पे पोजीशंस नहीं मिला तो इवन नॉट ओनली पोजीशन, सपोज आपका फ्लैट हैंडओवर किया बट आपका 1-2 साल में आपका क्या हो गया, लीकेज चालू हो गया, तो आप अप टू 5 ईयर तक आप ये भी आप बिल्डर से क्लेम कर सकते हैं एज पर रेरा एक्ट के हिसाब से। ये सब कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है भी मेरा फ्लैट लीकेज हो रहा है मैं क्या करूं। यू कैन क्लेम विद द बिल्डर्स अप टू 5 ईयर्स। 5 साल तक आप बिल्डर से ये भी क्लेम कर सकते हैं, मींस आपको खर्चा करने का जरूरत नहीं है, 5 ईयर्स तक आप बिल्डर से क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपने कुछ डिस्प्यूट, आपने कुछ क्वेरीज रेज किया ऑनलाइन पे, आपका क्वेरी 120 डेज में वो रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। बिल्डर कैन नॉट मेक अल्टरेशंस एडिशन विदाउट एनी इंफॉर्मेशन 2/3 ऑफ द ओनर अबाउट सच चेंजेस। पहले कैसे आपने फ्लैट लिया तो एक प्लान होता था, बाद में जब आप पोजीशन लेने के लिए गया तो उसका स्ट्रक्चर ही अलग हो जाता था, बट अभी ऐसे नहीं चलेगा। मिनिमम 2/3 ऑफ दी जो फ्लैट ओनर है उनका परमिशन लेना बहुत जरूरी है। कुछ भी प्लान चेंज करना है तो 2/3 ओनर का जो भी फ्लैट ओनर है उनका परमिशन लेके चेंजेस करना बहुत जरूरी है। बिल्डर और डेवलपर कैन नॉट टेक 10% एज एडवांस फ्रॉम द बेयर। पहले कैसे बिल्डर 50% तक भी आपका एडवांस लेता था, अभी एज पर रेरा एक्ट के हिसाब से 10% से ज्यादा आपसे एडवांस नहीं ले सकता।
सपोज पोजीशन के टाइम में भी आपको लगा कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप बिल्डर से कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं। मींस नाउ अंडर द रेरा एक्ट कस्टमर इज द किंग, मींस कस्टमर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स मिला हुआ है रेरा एक्ट में। पहले कैसे कस्टमर के लिए कोई भी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था तो इससे बिल्डर उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेके फंड डाइवर्ट हो जाता था, बट जैसे रेरा एक्ट आ गया सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है, सबको टाइम पे पोजीशन मिल रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा है। दैट इज वेरी गुड अंडर द रेरा एक्ट। ये सब लॉ आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी मैंने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में जैसे जो नॉन फाइनेंस फ्रेंड्स है उनसे मैंने रिसेंटली डिस्कस किया, उनको रेरा एक्ट के बारे में पता भी नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी फ्लैट भी लिया, बंगलो लिया, सब कुछ उन्होंने बिल्डर से लिया हुआ है, बट उनको रेरा एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। इससे क्या होगा, आपका जो राइट्स है आपको पता नहीं होगा। उसके लिए हम लोग ये बुक्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, बहुत सारे एक्ट्स है, नॉट ओनली रेरा एक्ट, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है। बहुत सारे लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो पता नहीं है। आपको एज ए बिजनेसमैन ये भी पता होना बहुत जरूरी है। आपको कोई ये किया, आपको अप्रोच किया गलती से, तो आप उसको ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, बेनामी ट्रांजैक्शन, ये सब चीजें आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स में कैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट काम करते हैं और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट कैसे काम करती है, सब चीजें उनके पास इंफॉर्मेशन से, आप कैसे कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं ऑलरेडी उनके पास सब इंफॉर्मेशन से। उसके लिए आपको ये ट्रांजैक्शंस में नहीं करना बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको बड़ा पेनल्टी फाइन आपको सहन करना पड़ेगा। उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट भी एज ए बिजनेसमैन आपको समझ के लेना बहुत जरूरी है, वो कंसिडर करके हम लोग ये बुक्स में मेंशन किया हुआ है। अभी हम लोग जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व टेकिंग क्रिमिनल प्रोसीड्स एंड डिस्कसिंग इल्लीगल सोर्सेस इनटू anticipating of ultimately using the criminal process for legal and illegal activity। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो भी करप्शन का पैसा होता है, जो भी इलीगल पैसा होता है, उसका ट्रांजैक्शन करना है। इट इज कॉल्ड एज ए डर्टी मनी। डर्टी मनी को बहुत सारे लोग अभी उसको क्लीन करना चाहते हैं, तो ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलता है। ये कैसे सिस्टम काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तो क्या है, इसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये चीज में आपको भी कभी कभी कोई गलती से नॉलेज नहीं है तो आप उसमें ट्रांजैक्शंस करते टाइम पे आपको ये समझना है ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या एक्चुअली ये क्या बेनामी ट्रांजैक्शन में आता है, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली उसके लिए ये चैप्टर्स हम लोग ऐड किया हुआ है। डर्टी मनी किससे आ सकते हैं, ड्रग ट्रैफिक आ सकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी से आ सकते हैं, करप्शन से आ सकते हैं डर्टी मनी, फ्रॉड एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेस। ये जो भी ब्लैक मनी, जो फ्रॉड मनी आता है वो उसको हम लोग डर्टी मनी बोलते हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वो कवर हो जाते हैं। उसको क्या होते हैं, डर्टी मनी को दे वांट टू क्लीन मनी, दे क्लीन मनी करना चाहता है। वो कैसे करते हैं ये सब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स में है, उसके लिए हम लोग आपको भी जानकारी देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये गलत करते हैं, ये गलती नहीं करना चाहिए। उसमें कैसे फॉलोइंग स्टेप इंक्लूडिंग द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या क्या होता है, उसको प्लेसमेंट बोलते हैं। प्लेसमेंट मींस एट दिस स्टेज डर्टी मनी इज डिपॉजिट इनटू लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी बहुत सारे लोग पहले क्या करने का, कैश बैंक में डिपॉजिट करने का, इसको वो प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग, ब्लैक मनी बैंक में डिपॉजिट करने का। बट अभी ऑलरेडी बैंक को इन्फॉर्मेशन किया व्हाट एवर हाई ट्रांजैक्शंस मींस आपने 10 लाख से ज्यादा बैंक में डिपॉजिट किया तो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन होता है। इसके लिए इसको भी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो उसमें ऐसे एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है लेयरिंग। लेयरिंग मींस लेयरिंग इन्वॉल्व्स सेंडिंग मनी थ्रू वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक। लेयरिंग मींस ये ट्रांजैक्शंस होता है एक जगह पे, वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक बैंक से घूमते घूमते फिर वो जो मेन पर्सन को जाना चाहिए उसको रीच होता है, इसको लेयरिंग बोलते हैं। उसके लिए ये भी ट्रांजैक्शंस आपको ध्यान में रखना है, किधर से ट्रांजैक्शन गलती से आपका तरफ से कुछ घूम के फिर के कुछ ट्रांजैक्शंस आ रहे, दैट इज आल्सो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको हम लोग लेयरिंग बोलते हैं। ये लेयरिंग इज आल्सो वेरी डेंजरस, ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शंस घूम के आते हुए रहते हैं। Integration. At this stage, the money appears to be come from illegal transactions, may involve final bank transfer to account of a local business in which launder has a stake. इसमें इंटीग्रेशंस में क्या होते हैं, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो इलीगल मनी है वो फिर घूम फिर के जो भी ओनर है, जो उसका मेन ओनर है जो ब्लैक मनी का, उनका कंपनी में वो जमा हो जाते हैं, वो जिधर शेयर होल्डर है। इसके लिए ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग जो ये किया हुआ है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी लिखा हुआ है, ये चीजें से होता है। इसके लिए ये चीजें आपको नहीं करना है, उसके लिए ध्यान रखना है। ये जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो दिस इज कॉल्ड ए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके लिए आपको बहुत बड़ा पेनल्टी फाइन इंप्रिजनमेंट है। इसका आपका चैप्टर लिखने का पर्पज ही यही है, आप ये ट्रांजेक्शंस में आपको नहीं जाना चाहिए, इसके लिए ये ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस रखना है।
मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कैसे करते, कभी लोग परचेजिंग ऑफ द फिक्स एसेट, अभी कैश में पहले कैसे कैश में फिक्स एसेट्स लेने का, जो भी मार्केट वैल्यू और जो रेडी रेकनर वैल्यू है उसका डिफरेंस में ये करना है, उसमें कैश ट्रांजेक्शन करना है, ये सब चीज जो होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होते हैं। उसके लिए इनकम टैक्स में अभी आप 2 लाख से ज्यादा इवन फिक्स एसेट परचेज और सेल अभी नहीं कर सकते। दूसरा जो होता है ब्लेंडिंग फंड्स, ब्लेंडिंग फंड्स में क्या होते हैं, यूजिंग जस्टिफिएबल कैश फोकस बिजनेस टू मिक्स डर्टी फंड्स विद द लेजिटिमेट इनकम, जो भी आपका ब्लैक मनी होता है वो रेगुलर इनकम में मिक्स करके ट्रांजेक्शन करते रहते लोग। इसके लिए आपका डिपार्टमेंट में सब चीजें स्टॉक का उनका पास इंफॉर्मेशन रहते हैं, अभी ऑल एचएसएन कोड है, एचएसएन कोड के हिसाब से आपने कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, ये भी उनके पास इंफॉर्मेशन रहते हैं। ये ब्लेंडिंग ट्रांजेक्शंस इमीडिएटली हाईलाइट हो सकते हैं। एक्सचेंजिंग द करेंसी, एक्सचेंजिंग करेंसी क्या होते हैं, बाइंग फॉरेन मनी विद इलीगल फंड्स थ्रू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। बहुत सारे लोग ब्लैक मनी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लेने में भी यूज करते हैं, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट एंड नॉट दिस इज नॉट गुड ट्रांजैक्शंस। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मींस बाइंग ए कैसिनो चिप्स, कैशिंग आउट चिप्स एंड जो भी आपने जो स्पेकुलेशन इनकम में स्पेकुलेशन बिजनेस में आपने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी लोग करते हैं। तो उधर भी अभी डिपार्टमेंट के पास 360 डिग्री का इंफॉर्मेशन से ये सब चीजें हाईलाइट्स होता है। ये एक्ट का पर्पज ही यही है, आप ये चीजें मत कीजिए, आपको जो भी करना है तो प्रॉपर टैक्स भर के ट्रांजेक्शन करना, दैट इज ऑल्सो एडवाइजेबल। बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है, बेनामी ट्रांजेक्शन इज दिस इज द ट्रांजेक्शन विच रियल बेनिफिशियरीज इज नॉट the one in the whose name the property has been purchased। अभी हम लोग बहुत सारी न्यूज में सुना रहे थे, किसी का ड्राइवर के नाम पे बहुत बड़ा बंगलो होता है, बहुत बड़ा खेती रहते हैं, उनका सैलरी तो 10-15 हजार होते हैं, तो बट उनका नाम पे बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन उनका अकाउंट में हुआ रहते, उनका नाम पे प्रॉपर्टी रहते, कोई मम्मी के नाम पे, रिलेटिव्स नाम के नाम पे, ये जो प्रॉपर्टी है उनका नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है। अभी सब जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो सब अभी ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म होता है, सो दे आर कंपेयरिंग विद देयर इनकम आल्सो। बेनामी ट्रांजैक्शन से भी अभी बहुत सारे अभी रिस्ट्रिक्शंस आपको आया हुआ है, उसके लिए ये भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। जो भी आपको प्रॉपर्टी लेना है तो आपको प्रॉपर टैक्स भर के प्रॉपर्टी लेना है। बेनामी ट्रांजैक्शन कब कब होता है, जैसे अभी एग्रीकल्चर लैंड किसी को लेना है तो उधर हर एक स्टेट में एक लैंड लिमिटेशंस होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं दूसरों के नाम पे लैंड लेता है, उनका इनकम तो खुद का रहते हैं बट प्रॉपर्टी इज इन द नेम ऑफ अदर पर्संस। और दूसरा इंस्टेंसेस कब होता है कि बहुत सारे लोग अभी कंपनी में बहुत बड़ा पोस्ट पे है, जो लिस्टेड कंपनी है उसमें बहुत बड़ा पोस्ट पे है, उनको सब इन्फॉर्मेशन होता है, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये वो लोग क्या करेंगे, वो दूसरा थर्ड पर्सन के नाम पे ट्रेडिंग करता रहते हैं उस शेयर पे। दिस इज ऑल्सो वेरी दिस वन इलीगल एक्टिविटीज, उधर बहुत बड़ा पेनल्टी फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, ये भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, इसको भी बेनामी ट्रांजेक्शंस में ऐड किया हुआ है, उसके लिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ट्रांजेक्शंस नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग डीमोनेटाइजेशन पीरियड में भी हम लोग बहुत सारे लोगों को नोटिस आया हुआ है, कोई लोग गलती से कैश भरा हुआ बैंक में, जिसका अकाउंट्स में पैसे भरा हुआ है, गवर्नमेंट के पास सब इन्फॉर्मेशन है, आपका एक एक अकाउंट में कितना पैसे डीमोनेटाइजेशन में भरा हुआ है वो सब इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारे लोगों को नोटिस भी आया हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बेनामी ट्रांजेक्शन, मीन्स आपका नॉट ओनली प्रॉफिट प्रॉपर्टी कैश ऑल्सो ट्रीटेड एज ए बेनामी ट्रांजेक्शंस। उसके लिए ये भी एक्टिविटीज आपको नहीं होना चाहिए बेनामी ट्रांजेक्शन में। इवन आप दूसरों का भी कैश आपका अकाउंट में जमा किया, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ए बेनामी ट्रांजेक्शंस। द सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल सिस्टम दैट गवर्न हिज बिजनेस। देयर आर मल्टीपल लीगल angles to a business, one must understand them all to do business peacefully as well as successfully। जो भी बिजनेसमैन है ये सब एक्ट उनको पता होना बहुत जरूरी है। आप कल कुछ गलती किया, बाद में ऐसे नहीं बोल सकते मेरे को ये पता नहीं था, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए बिजनेसमैन आपको बिजनेस करना है, ये सब लीगल जो भी लॉ है और सबको आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है चैप्टर का, वही पर्पज है आप लोगों को तक ये रीच होना चाहिए, जो भी ये गलती होता है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये चैप्टर्स में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। बेनामी एक्ट में आपको क्या क्या, सपोज आपने कुछ गलत किया तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा बेनामी एक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिक्शंस ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, सपोज आपने किसी का गलती से आपका नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया बट आपका इनकम खुद का नहीं है, वो किसी का थर्ड पर्सन का इनकम है, वो आपका इनकम और प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा है, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेंगे, उसको सीज कर देंगे, आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो सीज करके गवर्नमेंट खुद का कंट्रोल में ले लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, वेयर बेनामी ट्रांजैक्शन हैज बीन टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। सपोज आपने टैक्स अवॉइड करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस किया, वो भी गवर्नमेंट ने आपको अटैचमेंट भेज देगा। उससे क्या क्या हो जाएगा, सपोज आप टैक्स अवॉइड करने के लिए कुछ आपने ट्रांजैक्शन किया दूसरों के नाम पे, तो
तो आपको इम्प्रिजनमेंट 1 to 7 years होगा और फाइन होगा 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड दूसरा होगा वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, सपोज इन्फॉर्मेशन देना है तो आप गलती से इन्फॉर्मेशन दिया, उसके लिए 6 month to 5 years तक इम्प्रिजनमेंट है, 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी उसका फाइन से। उसके लिए ये सब एक्ट आपको सब जानना बहुत जरूरी है। ये एक्ट बहुत सिंपल में हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए, उसके लिए वेरी ब्रीफ में ये सब एक्ट में कवर किया हुआ इस चैप्टर्स में। आपको ये ध्यान में रखना, ऐसे भी कुछ एक्ट्स अपना इंडिया में है, आपको ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एज ए बिजनेसमैन। आपको रेरा एक्ट जानना बहुत जरूरी है और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का भी जानना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। आज का चैप्टर हम लोग चैप्टर 10 वी आर कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वीक वी रीड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 11 शेयर मार्केट। Thank you Anjali madam for giving your time. Anjali madam is founder of the Write Plus. She is a content writer and also we are happy to share she is also editor of our book Know Your Balance Sheet, and share this video to more and more your friends and reach knowledge, and they should understand the all laws of our law of India that helps everyone. Thank you so much. Have a good day. Thank you, madam, for your contributions. Yes, thank you, sir. Thank you very much.